Friends, today I am going to discuss with you the poem The Laburnum Top. So, students, before starting the poem, I would like to tell you that I will also make a PDF of the MCQs of previous chapter. We are not afraid to die if we can be all together. So, these MCQs are also to be well understood. Okay, students, so if you have any kind of doubt, so you can ask me. Now, before going to start this poem, The Laburnum Top, I would like to tell you that the main purpose of this, to write this poem is, of the poet, is the poet is, extremely impressed with the beauty of the nature. And nature, as you know, that quite beautiful. We see trees, we see birds, we see animals, we see the surrounding of us, mountains, rivers. These nature's object actually very beautiful. Okay, and these actually beautiful things always impress the human mind. Or now in the current poem, the poet is also very much impressed with a bird and a tree. So here I would like to tell you that laburnum top means a kind of tree. The student, you must have seen this tree. It has yellow flowers. Okay, students, the tree has the yellow flowers, and this is a beautiful tree. This is this poem is being written by Ted Hughes. So students, Ted Hughes actually was born in 1930 in Yorkshire in England, and he died in 1998. And his education actually he got his education in Cambridge University. And the poet actually is a non-fiction stories. He wrote non-fiction stories. He also wrote children's book and many other works in the field of the literature he did. And you must know Sylvia Plath, and his life partner was Sylvia Plath, and she wrote a poem Mirror. And in class 10th you might have gone through that poem in the English communicative book. So students, here the nature's beauty is being described. And a laburnum top is a tree, and this is the month of the September and autumn season, and the leaves of the tree actually dropped, shedded, and a bird named goldfinch. A goldfinch is a yellow bird, yellow and black color bars are there on her face. That is goldfinch. Okay, so in this poem, the poet creates a beautiful picture of the autumn afternoon. The top of a laburnum is all silent and still. The tree is bathed in the yellow light of the sun. The leaves of the tree are yellowing. Its flowers, seeds have fallen to the ground. A goldfinch comes chirping and lands suddenly at the end of a branch. Then, with the alertness and abruptness of a lizard, she enters the thickness of the branches. That means मतलब जो बर्ड है एक गोल्ड फिंच जिसे हम कहते हैं, वो एक लेबनम टॉप जो ट्री है, अमलतास का पेड़, तो उस पेड़ पे आती है और इस तरीके से बड़ी होशियारी से, बड़ी अलर्टनेस से वो पेड़ के अंदर एंटर करती है. और जैसे कोई छिपकली होती है, लिजर्ड होती है, वो किस तरीके से बड़ी आपने देखा होगा, बड़ी अलर्ट होके जो है चलती है. शी एंटर्स द थिकनेस ऑफ द ब्रांचेस. तो वो जो पत्तों की झुरमुट है, पत्तों की जो घनापन है, तो उस पर वो जो है बर्ड आती है और वो जाती. एट वंस देयर ए लॉट ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रिलिंग्स इन द ट्री. और पेड़ में बहुत जो है साउंड क्रिएटिंग थिंग्स स्टार्ट हो जाती है. ये ऑन मेटोपिया
फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, ओनोमेटोपिया मीन्स विच एक्चुअली सजेस्ट साउंड। तो जो साउंड का इसमें यूज होता है उसे कहते हैं ओनोमेटोपिया। चिटरिंग और चर्पिंग एंड मीन्स कि वो चहचहाना बर्ड का, चिटरिंग्स बच्चों का चूं चूं करना, ट्रिलिंग्स तो इस तरीके से जो बेबी बर्ड्स हैं वो ट्रिलिंग्स, उनके पंखों की फड़फड़ाहट। द होल ट्री ट्रेम्बल्स इन ए काइंड ऑफ थ्रिल, तो पूरा पेड़ बड़ा खुश हो जाता है। इट इज़ द यंग बेबीज ऑफ द गोल्ड फिंच दैट हैज़ कम टू लाइफ ऑन द कमिंग ऑफ देयर मदर। तो बेबी बर्ड्स जो मदर बर्ड के आने पे खुश हो जाते हैं। द मदर फीड्स ईच वन ऑफ देम टू देयर फिल, और उनकी जो मदर जो है वो उनको फिल, इट एक्चुअली फीड द बेबीज़ को फूड सर्व करती है। देन अगेन शी कम्स आउट टू द एंड ऑफ ए ब्रांच, और फिर वो एक ब्रांच के एंड में आ जाती है और बैठ जाती है, एंड फ्लाइज अवे इनटू द स्काई, और फिर वो स्काई में चली जाती है उड़ करके, है ना। शी मेक्स डेलिकेट विस्लिंग चर्प एज शी फ्लाइज अवे, और बड़ी चर्पिंग करती हुई, विसल करती हुई, सीटी सी बजाती हुई वो वहाँ से उड़ के चली जाती है। द ट्री वंस अगेन बिकम साइलेंट एंड स्टिल, और पेड़ दोबारा से साइलेंट हो जाता है। तो बच्चों ये एक बड़ी नेचर की ब्यूटी को बताने का एक तरीका है पोएट का, कि एक बहुत खूबसूरत पेड़ जो अम्बलतास का पेड़ है, लैबनम टॉप ट्री है, और उसमें एक बर्ड गोल्ड फिंच जो है वो आती है, और इस तरीके से वो अपनी बेबीज़ को जो है फूड सर्व करती है, और बेबीज़ जो है वहाँ पर जो चर्पिंग करते हैं, और तो उनकी आवाज़ से पूरे पेड़ में एक साउंड क्रिएट हो जाता है, और वो पेड़ जो है फिर लास्ट में जो है वो फिर उड़ के जो है उस पेड़ को छोड़ के चली जाती है। तो इस तरीके से एक बड़ा विद जैसे कोई एक पिक्चर हमारे आगे नेचर की चल रही हो, पेड़ की और वो बर्ड की, तो ऐसा हमें फील होता है। तो बच्चों मैं वन बाय वन जो इससे स्टेंजाज है मैं अब एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट जो इसका स्टेंजा है, तो आप प्लीज़ टेक आउट योर बुक एंड जस्ट प्लीज़ फोकस ऑन दी बुक। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September sunlight of few leaves yellowing, all its seeds fallen। तो बच्चों लेबनम टॉप आपको पता है एक जो है एक ट्री है, और इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, ग्रो होते हैं। स्टिल मीन्स होता है शांत, और येलोइंग आपको इट इज़ द कलर ऑफ द leaves. It is the afternoon. Now explanation I am going to give you. It is the afternoon of a day in September. The sun is shining with its yellow light. The poet sees a laburnum tree bathed in the yellow sunlight. The top of the tree is all silent. It is quite still. A few of the laburnum leaves are turning yellow. All the seeds in its flowers have fallen to the ground. The poet here draws a lovely picture of a laburnum tree as it looks on an autumnal afternoon. Now I come to the next stanza, lines 4 to 9. Till the goldfinch comes with a twitching chirp of suddenness or startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. So student, goldfinch, it is a kind of a bird. Twitching means कि with a jerk, है ना, ये एक फड़फड़ाती हुई। chirping, चिंची करना। startlement means surprisingly। sleek means very, कहते हैं ना कि वो सॉफ्ट, चिकनेट से, सफाई से। abrupt means all of a sudden। machine means it is a kind of एक मशीन की तरह।
और स्टार्ट्स ऑफ मतलब कि चौंक पड़ता है पेड़, चिटरिंग्स मीन्स चूं चूं की आवाज़ें, ट्रेमर मीन्स थरथराहट, ट्रिलिंग मीन्स कि एक भाई वाइब्रेशन टाइप का जो एक साउंड में होता है। तब नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस द laburnum lies silent and still till a goldfinch comes there with a twitching chirp. She lands suddenly and startlingly at the end of a branch, then very smoothly, in the manner of a lizard, she enters the thickness of the branches. She enters abruptly and remains alert as a lizard does. At once, the whole of her brood starts chittering. Brood means babies. There is a tremor of wings. Sweet trillings are heard. The whole tree starts trembling with a thrill of pleasure. तो बच्चों ये आई होप सो कि ये पैराग्राफ को समझ में आ गया होगा। जो लैबरम ट्री है वो बड़ा साइलेंटली रहता है और एक सुंदर सी एक प्यारी सी एक ब्यूटीफुल बर्ड वहाँ पे आती है और वो अपनी चर्पिंग स्टार्ट कर देती है और जिसकी वजह से जो है उसकी जो मूवमेंट है वो लाइक ए लिजर्ड होती है। फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे जो है सिमिली यूज़ किया गया है और इसकी घनी टहनियों में वो जो है एंटर करती है और बड़ी वो अलर्ट रहती है जैसे कि एक लिजर्ड होती है और फिर इसके जो बेबीज़ हैं वो चूं चूं करने लगते हैं, चर्पिंग करने लगते हैं, है ना। वो अपने जो विंग्स हैं उसको वो फड़फड़ाते हैं और इस तरीके से पूरा पेड़ जो है खुश हो जाता है। और वो नाउ नेक्स्ट लाइन 10 to 12, it is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch and showing her broad face identity mask. तो बच्चों आपने इंजन तो आप जानते हो, इंजन जो होता है स्टोक्स माने फीड करती है, फ्लड्स आउट मीन एक झटके से बाहर आ जाती है और बार्ड फेस मीन्स के जो चेहरा है उस पर कुछ बार्स हैं, कुछ धारियाँ सी बन रखी हैं। मास्क मीन्स एक चेहरा। और now I going to give you the explanation. It is the young ones in the goldfinch family who had started up their chitterings and trillings at the arrival of their mother. The mother feeds them all to their fill. Then she comes out skipping to the end of a branch. She shows her barred face which serves as her आइडेंटिटी मास्क। तो बच्चों ये सुंदर सी जो चिड़िया है इसके अपने बेबीज़ हैं जो कि मदर जो बर्ड के आने पर जो है दे स्टार्ट चर्पिंग, वो चर्पिंग शुरू कर देते हैं और वो उनको एक्चुअली फीड करती हैं अपने बच्चों को और फिर वो एक फुदक करके जंप करके जो है वो एक टहनी के एंड में आ जाती है और फिर और वो अपना फेस दिखाती है और ये उसका जो फेस है उसमें कुछ बार्स हैं जो बनी हुई हैं और वो उसकी पहचान का एक तरीका है कि ये गोल्डफिंच ही है। नाउ लाइन्स 13 to 15, देन विद eerie delicate whistle chirr up whisperings she launches away toward the infinite and the laburnum subsides to empty। तो बच्चों इरी मीन्स होता है भाई एक फियर्ड डरी हुई, विसल चेयर अप मीन्स होता है जैसे कोई सीटी की आवाज़ बजा रहा हो, विस्परिंग मीन्स होता है भाई एक फुसफुसाहट टाइप की आवाज़ बहुत स्लो वॉल्यूम में, लॉन्चेस अवे मतलब उड़ जाती है, सबसाइड्स टू एम्प्टी मीन्स कि ऐसे वो पेड़ जो है शांत हो जाता है। आफ्टर नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन आफ्टर हैविंग फैड हर यंग वंस, जब अपने जो बच्चों को फूड वगैरह सर्व करके द गोल्डफिंच कम्स आउट ऑफ द ट्री और ट्री से वो बाहर निकल आती है और फ्लाइज अवे टू द इनफाइनाइट स्काई और वो आसमान से बाहर उड़ जाती है आसमान में। इट मेक्स ए सैड डेलिकेट विस्लिंग चर्प एज इट फ्लाइज अवे। जब ये बाहर आती है तो एक बड़े सैडफुल टाइप का और बड़ा डेलिकेट और एक सीटी सी बजाती हुई बाहर चले उड़ जाती है
और आसमान में द लेबनम वंस अगेन बिकम्स ऑल क्वाइट एंड साइलेंट। तो लेबनम ट्री जो होता है, जो पहले जो स्टार्टिंग ऑफ द पोएम हमने पाया कि वो अकेला था और वो शांत था, वैसे ही वो शांत हो जाता है, अकेला हो जाता है। इट सीम्स एज इफ इट हैज़ बिकम्स एम्प्टी, ऐसा लगता है कि ये खाली हो गया था हो। तो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू a few questions and answers. What do you notice about the beginning and end of the poem? तो beginning और end में poem की आपने क्या देखा? The answer: the beginning and the ending of the poem present the same scene हम दिखाई देता है। The laburnum top is all silent and still। तो शुरुआत में जो पोएम के जो लेबनम जो ट्री था वो साइलेंट था, स्टिल था। देयर इज नो मूवमेंट इन द ट्री के कोई मूवमेंट नहीं था इन द स्टार्टिंग एंड एंड में भी यही होता है। तो इस तरीके से एंडिंग और स्टार्टिंग सेम है कि लेमन ट्री वाज ऑल साइलेंट एंड स्टिल, एंड इन द बिगिनिंग साइलेंट एंड स्टिल, एंड एट द एंड इट वाज साइलेंट एंड स्टिल। What is the bird's movement compared to bird के movement को किससे कंपेयर किया गया है? What is the basis for the comparison? तो the bird's movement has been compared to that of a lizard। तो lizard, बच्चों ये NCERT बुक आपके पास होगी, उसमें आप क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड में आपको बता रहा हूँ उसका। एक लिजर्ड के मूवमेंट से उसकी कंपेयर की गई है। इट्स मूवमेंट इज अलर्ट एंड एब्रप्ट। द लिजर्ड, द बर्ड मूवमेंट हैज़ बीन शोन टू बी एग्जैक्टली द सेम। तो बर्ड के जो मूवमेंट्स को इसमें बताया गया है। बच्चों मैं इसमें PDF वगैरह सेंड कर दूंगा ताकि आपको ये दिक्कत नहीं होगी इसकी क्वेश्चन आंसर्स की। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको इट मूवमेंट इज तो द बर्ड्स मूवमेंट हैज़ बीन कंपेयर टू दैट ऑफ ए लिजर्ड। और लिजर्ड मूव इन ए स्लीक मैनर एंड इट्स मूवमेंट इज अलर्ट एंड एब्रप्ट। द बर्ड मूवमेंट हैज़ बीन शोन टू बी एग्जैक्टली द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इमेज इवोक्ड बाय द इंजन? इंजन से तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज मतलब प्रोड्यूस हो रही है? द इंजन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन अ मशीन। एक मशीन को रन करने के लिए एक एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एक इंजन होता है। द गोल्ड फिंच इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर फैमिली। तो गोल्ड फिंच भी अपनी फैमिली के लिए एक एनर्जी का सोर्स है। शी फीड्स हर यंग वंस टू द फिल। और वो अपने बेबीज़ को जो है फूड सर्व करती है, फूड फीड करती है। और नाउ व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोम? पोम के बारे में आप क्या आपको ठीक लगा, सबसे अच्छा क्या लगा? द पोम क्रिएट्स अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ एन ऑटम सीजन, ऑटम आफ्टरनून। द होल पिक्चर कम्स अलाइव बिफोर आवर इमेजिनेशन। We see the laburnum top bathed in yellow light of the sun. The movement of the goldfinch have bathed in the yellow light of the sun. The movements of the goldfinch have also been described in a pictorial manner. While we are reading the poem, we feel as if we are watching a movie. Now next question, last question. What does the phrase "her barred face identity mask" mean? तो द गोल्ड फिंच हैज़ उसके धारीदार चेहरे वाला पहचान मुखौटा के बारे में बताइए। इन शब्दों से क्या पता चलता है? द गोल्ड फिंच हैज़ ए बार्ड फेस, इट लुक्स लाइक अ मास्क, हर फेस सर्व्स एज हर आइडेंटिटी। बाय लुकिंग एट हर फेस वी कैन एट वंस टेल दैट इट इज़ अ गोल्ड फिंच। Okay students, so with this I conclude this video. Thank you very much for listening and have a good day.